your introduction, Brijesh. My name is Brijesh Patel. I completed my BTech in Mechanical Engineering from Dharam Singh Desai University in 2021. I got campus placement in L&T Technology Services. Since then, it's been 2.5 years with that organization, and I belong to Anand City in Gujarat. So you're working in an organization for 2 years. Can you just tell me about that organization and what are your roles and responsibility? So currently, I'm working with L&T Technology Services, also called as LTTS. Uh, Here I am working as an engineer in the mechanical design department. My basic job role is of preparing 3D models and 2D drafting, that is the manufacturing drawings of different components. That's all? Along with that, I participated in client meeting and client discussion. Mm-hmm. Along with that, if any new members are joining in our team, then I will brief them about our way of working and other procedures that we follow. Okay. So, Brijesh, tell me one thing that why now you want to shift your organization? Why you want to join RFCL? Since my college days that I decided uh, I want to join a PSU, but because of the COVID and some financial reason, I had to take a decision to join a private company. But I kept on preparing, and here I am for the interview. Sorry, can you just repeat it out? Uh, since my college days, I decided that I want to join a PSU. So because of the COVID, during my final year, I decided to join a private company. But I kept on preparing, and today here I am for the Why interview. a PSU in particular? Uh, Particularly those because directly or indirectly, I will be uh, contributing to the nation, and my task and responsibilities will be going forward towards the Indian economy. See, Brijesh, if you're working for the private sector also, you're also indirectly contributing towards your economy only. So how come that's a different thing? Uh, like if we take the example of RFCL, so it is in the fertilizer industry. So it mainly produces urea, which is main commodity for the agricultural sector. So like my work will be directly affecting the farmers of the India. That's fine, but I cannot understand one thing that only towards the contribution of nation. Like, if I ask you, how we have contributed towards the nation so far, what will be your answer? Uh, like I have participated in many social initiatives which are there taken by my organization here as well. And apart from that, I help people on my own wherever I can. You get people. I help people like whenever I can. Like suppose uh, if you are there facing any problem, and then I come to know about their problem, then I am ready to help them whenever it is required. What are your hobbies? My hobby includes playing football and swimming. Rajesh, are you targeting only RFCL or any other PSU? Uh, Right now, I am more inclined towards RFCL. As I said, it is in the fertilizer industry and directly affecting the farmers. In future, if you get a call from any other PSU, would you go over there? Like it will depend.
Based on the result of RFCL that I get here. What kind of result are you looking for? Uh, I am confident about myself, but even if I'm not selected, I will keep on trying and apply again next year. My last question for you. In return, PSU will be giving you, RFCL will be giving you lots of opportunities, massive exposure, plus, yeah, a good growth and all that. What will be getting in return from you? Uh, with the job experience that I had over here, I am pretty confident about my technical skills, and I have got exposure to different types of areas, and I also honed my soft skills, including how to handle peer pressure and how to deal with clients. So it will be beneficial for the company. Okay, Brajesh, very first thing is that you have to learn your skills a little bit faster, right? I've talking about the very first thing, if I say it out, is that introduction. 3 लाइनर की इंट्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है? यू हैव Mhm. टू एक्सपैंड इट आउट। एक्सपैंड कैसे करोगे? गुड मॉर्निंग मैम, पहले अपने ग्रीटिंग करना है सारे पैनल मेट्स को। ओके, दैट इज आई एम ब्रजेश पाटिल, जो भी आपका नेम आ गया आपने वो बता दिया। आई हेल Mhm. फ्रॉम सिटी, आपने अपनी सिटी का नाम बताना है, बिकॉज आफ्टर दैट विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस अबाउट योर सिटी आल्सो, अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट आल्सो, राइट? So it will be about my name or the name of my city, or you can say I hail from city this. Coming to my academics, I have done this in my graduation from so and so university. आपने मास्टर्स भी किया है? No, ma'am. नहीं, आपने कल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, राइट? So Yes. that you have passed in 2021, right? And apart from it, you can talk about your just, I have done multiple projects. The major project which I've done is you can talk about that project, name of that project. If you're very confident, discuss of that project. If you're not, talk about the internship. If not, talk about your anything you are very comfortable on. And then it is, apart from my academics, I'm a professionally skilled enthusiast who has an experience of working in this sector for past 2-3 जो भी आपने years पे काम किया है इस sector में, on the rules and responsibilities of it. So that is a way an introduction is built up. Your introduction is not good as of now, right? Second आ जाता है आपका question, why you want to go for a PSU, why RFCL, ये आप clear होने चाहिए आपके mindset पे. You told, मैम I took a campus placement, मेरे को PSU में ही जाना था क्योंकि contribution towards nation, ये बड़ा vague आंसर लगता है, डिप्लोमेटिक आंसर है कि कोई भी आके बोलता है कि मैम मेरे को तो सरकार की सेवा करनी थी, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट आउट, बट दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग, राइट? इट्स नॉट द एक्चुअल रीजन. It is like, ma'am, first is that we are going to get my passion lies towards the PSU. My passion or interest lies towards the PSU because here I can get my opportunities. Career opportunities will be in my core sector. आपको कोर में काम करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एकेडमिक सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आपने थ्योरेटिकल स्किल्स, आपने नॉलेज गेन की हुई है, आप वो यूटिलाइज कर सकते हो। तो पहले तो आपकी काम की चीज मिल रही है, आपको अपने कोर में काम करने की, कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा आपको, राइट? क्योंकि प्राइवेट में हो सकता है आपको अपने Mhm. कोर में काम ना भी मिले, अगर वो पूछते हैं कि क्यों आप यहीं पे कंपेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि क्यों आप कहीं और नहीं जाना चाहते जहाँ पे आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। तो पहला रीजन ये होता है। दूसरा रीजन होता है कि मैम मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे इसलिए जाना चाहता हूँ बिकॉज आई गेट टू वर्क विद द बेस्ट ऑफ द माइंड्स ऑफ ऑल ओवर कंट्री, क्योंकि बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है वहां का, राइट? तो वर्क कल्चर की वजह से मैं वहां पे आना चाहता हूँ। थर्ड इज लाइक, या यू कैन से इट आउट मैम, आई इट इज लाइक यू गेट अ सेटिस्फैक्शन बिकॉज यू आर इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर नेशन बिल्डिंग। आप इनडायरेक्टली काम कर रहे हो। अभी तक क्या किया है आपने कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन? I think I have not done much, but I try to be a good citizen. I try to spread the awareness whenever it is possible. And yes, I try to feed the poor, fund towards the NGOs. जो भी आप छोटा मोटा करते हो, donate the clothes and all that, तो वो आपकी छोटी आ जाती है, but I keep in touch, और plantation करते हो, cleanliness drive करते हो, whatever you do it out, that is a contribution. But अकेला बोलोगे मैं तो सीधा contribution ही करना चाहता हूँ, वो झूठ लगता है, ठीक है? उसको आंसर को बिल्डअप भी Mhm. करना पड़ता है मैम। आई थिंक इट गिव्स अस अ जॉब सेटिस्फैक्शन। व्हाई इन अ प्राइवेट आल्सो यू गेट अ जॉब सेटिस्फैक्शन, आप कंट्री की इकोनॉमी को ही बिल्ड कर रहे हो। मैम दैट्स ट्रू कि हम कंट्री की इकोनॉमी को बिल्डअप कर रहे हैं, बट वी आर वर्किंग फॉर द प्रॉफिट ऑफ वन पर्सन और वन कम्युनिटी। यहाँ पे जो सरकार है वो नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स उठाती है पूरे कंट्री के वेलफेयर के लिए। डिफरेंस समझ आ गया? प्राइवेट में क्यों ही नहीं काम कंटिन्यू करना चाहते ना, हम यहाँ पे स्टैटिक वर्क कल्चर हो जाता है, कुछ टाइम बाद ना सेम ही काम करते रहते हैं लोग, है ना? फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है क्योंकि पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स आएंगे प्राइवेट में, हम पार्ट बनेंगे नहीं बनेंगे। पर गवर्नमेंट में इट इज अश्योर्ड, क्योंकि लोगों के वेलफेयर के लिए कोई ना कोई पीएससी कुछ ना कुछ पॉलिसीज उठाता रहता है, और आप कोई ना कोई आरएफसीएल का प्रोजेक्ट उठा सकते हो। रेलवेज आर समथिंग, और यू कैन से दैट इज इन द फर्टिलाइजर सेक्टर दैट इज गोइंग ग्रेट इन दैट वे, राइट? तो आप बता सकते हो इस सेक्टर में कि क्या क्या एडवांसमेंट है, कैसे आप जा सकते हो। Okay, then it is about the next is that
आपने जैसे बोला व्हाट थिंग्स, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाए तो आप, मैं आपको इतना कुछ दे रही हूँ, आप हमें क्या दोगे? इसका क्वेश्चन तीन चार फॉर्म में बनता है। What things, what soft skills you are going to bring on board for us? आप हमारे लिए क्या क्वालिटीज लेकर आओगे हमारे बोर्ड पे? सेकंड इज, या ये पूछा जा सकता है कन्विंस अस, आप बाकियों से बेटर कैसे हो, आप सेट कैसे हो सकते हो, ऐसा कुछ भी पूछता है ये। तो इसका आंसर इज वेरी, ये नहीं होना मैम मेरा एक्सपीरियंस है ये है, थोड़ा बोस्टिंग नहीं लगना चाहिए आपका। थोड़े आंसर्स बोस्टिंग की तरफ जा रहे थे ब्रिजेश। आपको बड़ा काम, पेशेंस एंड उस तरह से लगना चाहिए दैट यू आर ट्राइंग टू कन्विंस देम, नॉट एज की कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ओके, so it will be like, ma'am, I think that I have got good experience. I can be an asset to your organization because I have good experience in this sector. आपके पास experience है. Plus I have strong theoretical knowledge and my practical exposure is also strong. ये तो हो गया एक part. Apart from it, मैम मेरे पास कुछ soft skills हैं. जैसे मैं हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हूँ, शायद आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के अवार्ड्स भी मिलते हैं, वो अगर मिला है तो, नहीं मिला तो फिर आप बोलते हो कि मैं पंचुअल हूँ, पंचुअल नहीं हो तो आप बोलते हो मैं गुड लर्नर हूँ, मैं लर्नर अच्छा आ जाता हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड आ जाता हूँ, मैं रैशनल थिंकर, लीडर आ जाता हूँ, कुछ भी ऐसे बोलो, ओरेटर आता हूँ, ट्रस्टवर्दी आता हूँ, प्रैक्टिकल आता हूँ, बहुत वर्ड्स है। तो मैम ये सारी चीजें मैं आपके लिए ऑन बोर्ड ला रहा हूँ, या फिर इन रिटर्न मैं ये चीजों से सर्व करूंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर है? जैसे आपको मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो थोड़ा उसको, चॉइस ऑफ वर्ड्स को इम्प्रूव करो, अपने लाइनर्स को इम्प्रूव करो, अपने आंसर्स को देखा करो कि ऐसा नहीं लगना चाहिए एक बिल्कुल बोलते हैं ना पॉइंट में नहीं आंसर देना, एक अच्छी लाइंस में आंसर्स दो आप। थोड़ा एक, मैंने एलैबोरेट करने को नहीं बोला, बट थोड़ा बेटर आंसर बन सकते हैं आपके क्वेश्चंस के, और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, एक्सपीरियंस भी है उसको। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट यूजिंग इट इन अ राइट सेंस। थोड़ा पर बोलो अच्छे से, ठीक है? गलतियां क्लियर हुई, व्हाट आई एम पुटिंग इन अ डायरेक्शन राइट नाउ, क्लियर है? यस मैम। हाँ, इंटरव्यू कब है अभी आपकी ब्रजेश? 15 जुलाई। 13 जुलाई और 30 जुलाई? 15। 15 जुलाई। ओके, जस्ट 4 days लेफ्ट। यूज द टाइम प्रॉपरली नाउ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई यू ज्वाइन सो लेट। आपने लेट ज्वाइन किया? मतलब रिसेंटली ज्वाइन किया। हाँ, रिसेंटली ज्वाइन किया है, और दैट्स वेरी नियर। लाइक आई विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक क्वेश्चंस टुडे विद यू। जैसे मिशन विजन क्या होता है, मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रही हूँ, कुछ प्रिपेयर करके आना। जैसे आपकी इंट्रोडक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटी के बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हॉबीज के बारे में इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं जो जनरिक स्टार्ट होता है, बिकॉज दे ऑल्सो ट्राई टू मेक यू कंफर्टेबल। अचीवमेंट कुछ रही हो आपकी, बिगेस्ट अचीवमेंट, कोई आपका रिग्रेट रहा हो, कोई चैलेंज आपने फेस किया हो, आपने उसको मीटअप किया हो, कोई आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, क्या क्वालिटीज है आप में, कोई 3 ट्रेट्स बता दो जो बाकियों से आपके डिफरेंट है। फिर आपने लीडरशिप रोल परफॉर्म किया है तो कैसे किया था, कोई एक्सपीरियंस बताइए हमें लीडरशिप रोल का। ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर आपने एक अच्छे, आपने कोई भी बता दिया कि मैं एक अच्छा लर्नर हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, कैसे हो, रिलोकेशन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, तो ये सारे। कोई हमें आरएफसीएल का प्रोजेक्ट बताओ जो रनिंग आपको अच्छा लगा हो, आपकी स्टेट से कोई लिंक्ड प्रोजेक्ट हो, कुछ आपके चल रहा हो, ये सारी चीजें आती है। ठीक है? पढ़ के आओ एक बार अच्छे से, देन इंटरेक्ट अगेन। ठीक है? यूज योर टाइम वाइजली, यू जस्ट हैव 4-5 days लेफ्ट, वेरी लेस टाइम। ओके, तो रेगुलर हो यस जाओ मैम। थोड़ा, और अच्छे से यूज करो। आई वॉन्ट से इट आउट इट्स वेरी गुड, इट्स एवरेज राइट नाउ। ठीक है? तो एवरेज कैन बी इन यस बोथ मैम। द साइड्स। ओके, चलो। ओके ब्रजेश, ऑल द वेरी या बेस्ट। मैम।